Good day, everyone. Today we are going to continue with the chapter first, that is nature and significance of management. In that, the another function of management is coordination. Right? We have already studied about the functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So coordination is also part of function of management. Now here it is written introduction. Coordination is required at every stage of management. Coordination is to necessary from planning to controlling. Now coordination is required every stage of management, whether it is a top level, middle level or bottom level of management. Coordination is necessary from the planning to controlling. Whatever the function is there, first planning, organizing, staffing, directing and controlling. So from planning to controlling, coordination is necessary from each function. Coordination gives a sort of assurance for the accomplishment of objectives. Coordination gives us an assure that our objectives can be achieved. No work remains incomplete or no work is duplicated, thus the work becomes easy. Because of the coordination, works doesn't remains incomplete. Now here meaning is given. What do you mean by coordination? To bring a coordination and harmony among the different functions carried out by different department in the business unit is called coordination. कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हर एक्टिविटीज़ कनेक्टेड है, हर डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, तो उनके बीच में पीस रखना. हार्मोनी मीन्स पीस रहना. अगर वो लोग साथ में काम करेंगे तो ऑब्वियसली आवर गोल कैन बी ईजी एंड आवर गोल कैन बी अचीव्ड, राइट. सो अगर कोऑर्डिनेशन लाना है तो कोऑपरेशन की ज़रूरत है, अगर टुगेदरनेस की ज़रूरत है, अगर सब साथ में मिलके काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन भी रहेगा हर डिपार्टमेंट में, ठीक है, और हमारा काम भी कंप्लीट होगा. सो इट इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज गिवन. What are the characteristics of coordination? First characteristic, coordination is required for all these activities right from the planning to controlling. Therefore, management process is not possible without coordination. Now coordination first characteristic उसका है कि it is required in all activities from planning to controlling, and without coordination all management process is not possible. Second point, coordination is required at every level of management. Now it is required at every level means there are three levels of management, that is top level, middle and bottom. So it is required in every level of management. If top level management decided, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक दूसरे की बात ही नहीं मानेंगे, राइट, डिसीजन ही नहीं करेंगे, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा और बॉटम भी नहीं कर पाएगा. सो इट इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. थर्ड है सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नाउ कोऑर्डिनेशन रखना, तालमेल रखना, वो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन. अगर आप कम्युनिकेट करोगे, बात करोगे, तो आपका काम भी होगा. फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन. बिना कोऑपरेशन यानी कि बिना कोऑपरेटिव, बिना टुगेदरनेस, अ पीपल वर्किंग इन अ ग्रुप, राइट. सो वो ग्रुप में अगर टीम अगर साथ में कोऑपरेट करेगी तो ही कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है, ठीक है. Cooperation of employees engaged in different activities is necessary to maintain coordination among various activities of the organization. हर एक्टिविटीज़ कौन कंडक्ट करता है, तो एम्प्लॉयज़, और हर एक एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयज़ रहते हैं. तो अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में टुगेदर यानी कोऑपरेशन रहेगा तो ही कोऑर्डिनेशन, तालमेल रहेगा, तो ही हमारा गोल सक्सेस होगा. फिफ्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू सारे रिसोर्सेज अच्छे से अच्छे यूज़ होंगे, ठीक है. सिक्स पॉइंट, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट. जैसे बाकी सारे फंक्शंस हैं वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक पार्ट है मैनेजमेंट का. ना इम्पोर्टेंस दिया है, सेम इम्पोर्टेंस है फर्स्ट वन कि इट इज़ अ फंक्शंस लाइक जैसे बाकी सारे फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग. Coordination also function of management.
कोऑर्डिनेशन मेक पॉसिबल ऑल द बिजनेस एक्टिविटी इन ईजी मैनर. बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन सबके बीच में अगर बैलेंस रहेगा तो सारी एक्टिविटी ईजी और स्मूथ वे में रन होगा. कोऑर्डिनेशन लिव्स वर्क इनकम्प्लीट एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. यानी कि कुछ भी काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाएगा. कोऑर्डिनेशन ऑल्सो मेंटेन्स अ हार्मोनी अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट. यानी कोऑर्डिनेशन के थ्रू हर डिपार्टमेंट में पीस यानी कि शांति बनाए रहेगी. It also enables to maintain a balance between orders and times of business activities performed by various department. जो भी कोऑर्डिनेशन के थ्रू वो बैलेंस रखता है कि ऑर्डर यानी कि जो भी मैंने ऑर्डर दिया वो कंप्लीट हुआ, जो भी परफॉर्मेंस हुआ हर डिपार्टमेंट वो बैलेंस रखने की कोशिश करता है. लास्टली इट लीड्स टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रीडिसाइड. अकम्प्लिश मतलब ही अचीवमेंट ऑफ प्रीडिसाइडेड ऑब्जेक्टिव. ऑलरेडी यू हैव सेट द ऑब्जेक्टिव्स. तो बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होगा. अगर सब साथ में काम करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अच्छे से होगा. ठीक है. नाउ द लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर फर्स्ट का, दैट इज़ फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. नाउ कुछ मैनेजमेंट के कुछ फंक्शनल एरियाज है. ठीक है. मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन आर टू बी मैनेज इन द बिजनेस. बहुत सारे फंक्शंस हो गए जो मैनेज होता है बिजनेस में. As per these functions, the following are the functional areas of management, that is marketing management, human resource management, financial management, and production management. So there is a 4 areas of management, that is functional areas of management, that is marketing, human resource, financial and production. So ये सारे functions भी functional areas जो होते हैं कंपनी में वो मैनेज किए जाते हैं. तो पहला यहाँ पे बोला है कि मार्केटिंग क्या होता है. तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ गुड्स. द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट डिमांड. तो मार्केटिंग अगर सिंपल में बोला गया है कि पहले तो वो क्वांटिटी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. और वो गुड्स डिपेंड करता है कि मार्केट में उसकी डिमांड क्या है. सो अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन दे प्रोड्यूस गुड्स. ये होता है मार्केटिंग का एक्टिविटी. मार्केटिंग में एक्चुअल काम ये चीज़ें होती. फाइनेंशियल में क्या है कि फाइनेंशियल में फाइनेंस अरेंज करना, कौन से सोर्सेज से आप फंड कलेक्ट करोगे, और उससे क्योंकि फंड अगर फाइनेंस होगा तो प्रोड्यूस होगा, राइट. वेयर इज मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स क्या काम करता है. तो ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्म करता है एक्टिविटी रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़. यानी कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्टिविटीज़ है. ठीक है. और प्रोडक्शन क्या है. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट रिलेटेड है कि प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी फाइनल प्रोडक्ट. तो वो डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल वाले अरेंज करके देंगे, उसके बाद गुड्स प्रोड्यूस होगा, देन मार्केटिंग होगा. ठीक है. तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट वन मार्केटिंग मैनेजमेंट. In a broad sense, marketing management is the activities of goods and service from producer to customers. Underline this slide. Marketing management क्या है कि providing goods and service from producer to customer. Marketing वाले goods, final goods customer तक पहुँचाते हैं. Marketing management also includes about the exchange of goods with money. उसका एक दूसरा एक्टिविटी है कि goods exchange करते हैं in terms of money. As well as they also research about market. मार्केट रिसर्च भी करते कि आज मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उसके प्राइस क्या है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दैट दे प्रोड्यूस गुड्स. डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड यानी कि फाइनल गुड बनने के बाद कस्टमर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डायरेक्ट से, इनडायरेक्ट से. ठीक है. सेल्स प्रमोशन यानी कि आफ्टर कस्टमर्स को पहुंचाने से पहले प्रमोशन तो करोगे ना, एडवर्टाइज़ करोगे कि भाई ये है कि नहीं. एडवर्टाइज मतलब एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट भेजोगे कि भाई ये गुड्स नया स्टार्ट हुआ है. ठीक है. तो उसको बोलते हैं आप सेल्स प्रमोशन. आगे हम उसका पॉइंट देखेंगे. स्टोरेज, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद आप कहाँ स्टोर करोगे, गोडाउन में, और वो गुड्स का इंश्योरेंस भी. ये सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है. Marketing management is also process which decide the necessity of customers.
पहले तो वो कस्टमर्स की डिमांड पे डिपेंड करता है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या नेसेसरी है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट में क्या ऐसा चाहिए जो हम नया कर सकते, उस हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली कस्टमर्स को अवेलेबल करते हैं. Thus, it can satisfy the needs of particular customer or group of people. It gives importance to the optimum utilization of resources and profitability of the organization. Marketing aims at creating demand for goods. Marketing का मेन एम यही है कि प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड उसकी मार्केट में बढ़ाए. The main element of the goods or services, physical distribution, price policy, increase in sale, packaging, etc. तो उसका मेन एलिमेंट क्या है मार्केटिंग का? गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना. डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कस्टमर्स को प्रोडक्ट, उसकी प्राइस क्या होगी, सेल्स कैसे इंक्रीज कराओगे, उसका पैकिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो ये सारी एक्टिविटी मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है ना. उसकी फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन दिया है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स. द डिसीजन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब कैटलॉग, मतलब आपकी अगर प्रोडक्ट आप अब कभी भी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल का है तो मोबाइल दिखने में कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ स्क्वायर और इट शुड बी अ रेक्टेंगल, राइट. कलर, मोबाइल का कवर कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक, वाइट, ग्रे. साइज़, मोबाइल कितना बड़ा होना चाहिए? साइज़, उसका शेप क्या होना चाहिए? वेट कितना हो जाए? प्रिंट यानी कि बॉक्स, अगर उसकी पैकिंग की प्रिंट कैसी होनी चाहिए? फिर वो मोबाइल कितनी गारंटी, कितना गारंटी देते हैं वो आफ्टर सेल सर्विस, मोबाइल ख़रीदने के बाद कस्टमर जब मोबाइल ख़रीद लेते हैं उसके बाद क्या सेल सर्विस प्रोवाइड करना है, और उस मोबाइल में कितना वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होगा. जैसे कुछ GB होता है ना, 64, 32 GB. तो वो सारे रिलेटेड फंक्शन कौन करता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट. सेकेंड है प्राइस एलिमेंट. नाउ अ कस्टमर्स एक्सपेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. हर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोड्यूस करें, वो भी रिजनेबल रेट में, राइट. देयरफॉर ऑलमोस्ट केयर शुड बी टेकन व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. तो हर कंपनी मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है कि पहले कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से ही वो प्राइस डिसाइड होता है प्रोडक्ट का, ठीक है. यू कांट सेल योर प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस, वरना कोई खरीदेगा ही नहीं. द प्राइस डिसीजन रिलेटेड टू सेल्स पॉलिसी. अब प्राइस कैसे, प्राइस डिसीजन में क्या आता है? तो सेल्स पॉलिसी, ठीक है, आप कैसे बेचने वाले हो. क्रेडिट पॉलिसी भी होती है, अगर उधार पे देने वाले हो, कैश पे देने वाले हो, या डिस्काउंट आप बेच रहे हो, या होलसेल का भाव लगाओगे, तो वो डिपेंड करता है प्राइस पे. तो ये भी कौन डिसाइड करता है? मार्केटिंग मैनेजर. थर्ड वन है डिस्ट्रीब्यूशन. प्राइस डिसाइड हो गया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? होलसेल, डायरेक्ट सेलिंग करोगे कस्टमर्स को, या इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मतलब उसमें पर्सन होता है, होलसेलर आता है, रिटेलर होता है, ठीक है. तो वो डिसाइड आप करोगे. नेक्स्ट प्रमोशन. आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट होने के से पहले आप प्रमोट कैसे करोगे? कोई भी प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होता है तो आप टीवी में एडवर्टाइज दिखाते हो, राइट. पब्लिसिटी कर दो, एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट निकाल दो, तो एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि ये कुछ नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, और कस्टमर्स डायरेक्टली अट्रैक्ट होंगे और सेल्स भी उसकी वजह से इंक्रीज होगा. तो ये चारों एक्टिविटी कौन कंडक्ट करता है? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट. नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट फंक्शनल एरिया है सेकेंड वन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ना ह्यूमन रिसोर्स का काम है कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना. एवरी बिजनेस यूनिट टेक केयर ऑफ द असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल. हर एक बिजनेस अपने एसेट्स को की बहुत केयर करता है. लैंड, बिल्डिंग है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द बिजनेस यूनिट आर अ लाइव असेट्स. और एम्प्लॉय जो बिजनेस में काम करते हैं वो एक लाइव असेट्स है, ठीक है, जिसकी हम वैल्यू भी नहीं लगा सकते, ठीक है. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ देम. इसीलिए उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल इम्प्लीमेंट तो वही करते, एक्चुअल काम वही करते. सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन अपॉन द एम्प्लॉयज़. बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैन ईजीली एंड सक्सेसफुली अचीव इफ देयर नीड्स आर सेटिस्फाइड. अगर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ईजी वे में अचीव होगा
अगर आप एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड करोगे, एम्प्लॉयज़ की नीड्स को सेटिस्फाइड करोगे, तो एनवायरनमेंट भी अच्छा बना रहेगा और आपके गोल्स भी अच्छे होंगे. सो ड्यू टू सच केयर, एंथुसियाज्म, लॉयल्टी एंड फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ डेवलप. और उसी की वजह से एंथुसियाज्म मतलब एक, अगर आप कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करोगे तो वो और अच्छे से काम करेगा. लॉयल्टी रहेगा, लॉयल रहेगा सबसे, ठीक है. फीलिंग ऑफ वननेस, वो भी ऐसे समझेगा कि मैं भी एक कंपनी का पार्ट हूँ, ठीक है. और बिना कोई मिस्टेक से काम सक्सेसफुल होगा. नाउ मीनिंग ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच टेक इनटू कंसिडरेशन मैटर्स लाइक प्रोफिशिएंसी, नॉलेज, इंटेलिजेंस, लाइक्स, डिसलाइक, पर्सनल डेवलपमेंट, नेसेसिटी. ह्यूमन यानी कि एम्प्लॉयज़ की क्या खासियत हो? नॉलेज चाहिए, प्रोफिशिएंसी, कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंट होना चाहिए, लाइक्स, उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, पर्सनल डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट वन. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? तो एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन करता है. रिक्रूट करने से पहले वो रिक्रूट करने के बाद अपॉइंट यानी कि सिलेक्ट करता है बेस्ट एम्प्लॉयज़ को, ट्रेनिंग देता है, उसके बाद प्रमोशन, आगे की पोस्ट, हाई पोस्ट देता है, और डायरेक्शन भी देता है एम्प्लॉयज़ को. सेकेंड है, इट enables to accomplishment business objectives by way of integration them with the individual objectives and business objectives. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये ध्यान रखता है कि जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं और इंडिविजुअल यानी कि एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है वो दोनों कभी क्रॉस ना हो, यानी कि एक ही रहना चाहिए. साथ साथ में एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे होना चाहिए और बिजनेस का भी. बेसिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट टू मेंटेन एम्प्लॉय एज दे आर द असेट्स ऑफ वैल्यूएबल असेट्स ऑफ बिजनेस. यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये भी मैनेज करता है कि एम्प्लॉयज़ बने रहे उस कंपनी में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट्स है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ट्रेनिंग एंड दस डेवलप पर्सनल फॉर द जॉब. वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है. एंड ऑल्सो इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड प्लेस देम एट द राइट पोजिशन. इवेलुएट परफॉर्मेंस यानी कि हर एक एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस वो देखता है, जो अच्छा है उसको राइट पोजीशन भी प्रोवाइड करता है. एक एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट एंड कैन मेंटेन स्किलफुल एम्प्लॉयज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन कंपनी. लेबर टर्नओवर रेट यानी कि रिड्यूस. अगर एक अच्छा मैनेजर होगा ह्यूमन रिसोर्स तो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखेगा और वो कभी भी लेबर टर्नओवर रेट इंक्रीज़ नहीं होगा, यानी कि छोड़ के नहीं जाएंगे. अगर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए तो यही लेबर टर्नओवर रेट इंक्रीज़ हो जाएगा. सो अगर एक अच्छा एफिशिएंट मैनेजर होगा तो वो लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस भी करवा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड. एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, conducive atmosphere is provided to employees which ultimately boost their enthusiasm and efficiency. The value of these companies are maintained and business objectives are achieved. अगर स्टाफ को डायरेक्ट करोगे, उसको अच्छा एक एटमॉस्फेयर दोगे, तो वो अच्छे से काम करेगा और अपना जो गोल है वो भी अचीव्ड होगा. ना यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है कि एफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ टेंड टू इंक्रीज ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा तो ही एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे. प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करवा देते हैं. अगर एम्प्लॉयज़ रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा बिजनेस का. नेक्स्ट बोला गया है कि बिजनेस प्रेस्टीज इज मेंटेन. अगर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मेंटेन रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो बिज़नेस का प्रेस्टीज यानी कि स्टेटस भी बढ़ेगा. अगर वही एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएंगे, अगर आपने अच्छे से उसके साथ बिहेव नहीं किया, एम्प्लॉयज़ चले गए छोड़ के, तो आपका बिज़नेस का स्टेटस डाउन भी हो सकता है. हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेंटेन. एम्प्लॉयज़ एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते तो जितने एम्प्लॉयज़ रहेंगे गुड्स एंड सर्विस भी उतने ही हाई स्टैंडर्ड के बनेंगे, मेंटेन रहेंगे. फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ इज डेवलप. ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर एम्प्लॉयज़ के बीच में यूनिटी बनी रहेगी. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज होंगे प्रॉपरली. लेबर टर्नओवर रेट डिक्रीज़ हो जाएगा.
अगर कंपनी में एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएंगे, रेजिग्नेशन नहीं होगा, तो लेबर टर्नओवर डिक्रीज भी हो सकता है। हर एक एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे तो उनको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि हाँ हमारी जॉब सेटिस्फाइड है। अगर जॉब सेटिस्फाइड हो गई तो वो एनवायरनमेंट भी पीस में रहेगा। ठीक है, लास्ट है आपका टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट का 4th पॉइंट, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ना फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, तो फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। एक लाइफ ब्लड की तरह ही है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड इंपॉर्टेंट है वैसे ही बिजनेस में फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी एक्टिविटीज़ फाइनेंस के बिना इम्पॉसिबल है। नो एक्टिविटी इज़ पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। फाइनेंस क्यों रिक्वायरमेंट है, जब बिजनेस इस्टेब्लिश होता है तब ज़रूरत है, जब बिजनेस एक्सपांड यानी कि डेवलप होता है, ग्रो होता है तब ज़रूरत है, एक्सपांड होता है तब ज़रूरत है, मॉडर्नाइजेशन यानी कि रिनोवेट के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है बिजनेस की। ठीक है, तो तब रिक्वायर होता है। नाउ मीनिंग दिया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द फाइनेंस फंक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि फाइनेंशियल क्या करता है, तो फाइनेंस से रिलेटेड काम करता है। फाइनेंस ऑफ फंक्शन यानी कि एक्वाजिशन, यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन, ये 3 एरिया है। ठीक है, एक्वाजिशन कहाँ से लेके आओगे आप, ठीक है। यूटिलाइज, अब जो भी सोर्सेस से आप फंड्स फाइनेंस लेके आए हो तो उसको यूटिलाइज कैसे करोगे, यूज़ कैसे करोगे। अलोकेशन यानी कि कैपिटल यानी कि फंड कहाँ कहाँ अलोकेट करोगे, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में अगर आपने पैसा दे दिया तो दूसरे डिपार्टमेंट कैसे काम करेंगे, तो वो प्रॉपरली अलोकेट करना, ये सब किसका काम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ फर्स्ट वन देयर टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड्स। पहले तो फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, कौन से डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ को ज़रूरत है फाइनेंस की, वो एस्टिमेट निकालेगा। सेकेंड बोला है कि फाइनेंशियल प्लान फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, जो भी ड्यूरेशन टाइम देखेगा कि कितने टाइम में कितना पैसा की ज़रूरत पड़ने वाली है। थर्ड है टू प्रिपेयर अ बजट, बजट प्रिपेयर करेगा कि कितने पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। फोर्थ टू अलोकेट फंड, फाइनेंस मिलने के बाद कैसे वो फंड को आप अलोकेट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे हर डिपार्टमेंट में। कौन से सोर्सेज से एक्वाइजेशन यानी कि परचेज करोगे, यानी कि कौन से सोर्सेज आप कैपिटल लोगे, शेयर के थ्रू, ठीक है, बैंक से लोगे, है ना। फिर टू कैरी आउट द प्रोसीजर ऑफ एक्वायरिंग द फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस आपने चूज़ कर लिया कि ये सोर्सेज से मुझे फाइनेंस एक्वायर यानी कि लेना है, तो उसकी प्रोसीजर भी वही करेगा, सेटल डाउन। कैसे यूटिलाइज करोगे, यहाँ पे बोला है कि टू सी दैट एक्वायर्ड फंड्स आर प्रॉपर्ली यूटिलाइज एंड टू कीप कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना भी फाइनेंस मैनेजर का काम है। और यूटिलाइज हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पैसा वेस्ट हो, ठीक है, जितने भी पैसे हैं वो फालतू में खर्चा ना हो, वो ध्यान रखना भी उसका काम है। फाइनेंशियल पॉलिसी डिसाइड करेंगे। फिर टैक्स, कितना टैक्स लगने वाला है वो उस हिसाब से भी वो देखेंगे। टू मेक अरेंजमेंट ऑफ असेट्स, एसेट्स की अरेंजमेंट वो भी फाइनेंस मैनेजर ही देखेगा। नाउ लास्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल फाइनेंशियल गुड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इज नोन एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसे कहते हैं, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल गुड्स इनटू फाइनल गुड्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज इज नोन एज प्रोडक्शन। Production management produce goods and service which are capable to satisfy customers' need. प्रोडक्शन का काम है कि गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना, और वही गुड्स एंड सर्विस कौन सेटिस्फाइड होता है, कस्टमर्स, उसके नीड्स पूरे होते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट करता है क्या, तो यहाँ पे बोला कि हु इंक्लूड्स द प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन रिलेटेड प्लानिंग करता है वो, कि कौन से मेथड से प्रोडक्ट बनाने हैं, क्या प्लान है, प्रोग्राम कंडक्ट करते, और हर कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखते हैं कि वो प्रोडक्शन लाइन में कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो हमारा गोल्स नहीं अचीव होगा, प्रोडक्शन बनेगा नहीं। गाइडेंस की ज़रूरत है, कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन है टू डिसाइड द प्रोडक्शन प्लान, कैसे वो प्रोड्यूस करना है गुड्स, उसका प्लानिंग करते हैं। प्रोडक्शन रिसर्च करते हैं किस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि मैंने आपको बोला उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, कैसे शेप में बनना चाहिए, वो सारे डिसीजन वो लेता है।
कौन सी टेक्नोलॉजी और मशीन यूज़ करनी है वो भी वो डिसाइड करता है। लोकेशन यानी कि लेआउट स्ट्रक्चर बनाता है वो। देन मटेरियल, पहले तो वो मटेरियल परचेज करेगा, फिर वो प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, एस्टिमेट निकालेगा वो मटेरियल कितना है, उस हिसाब से वो प्रोडक्शन करेगा। देन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर, कोई एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो और मिनिमम अच्छे से प्रोडक्टिविटी हो, मैक्सिमम आउटपुट मिले और कम खर्चे में बने, वो ध्यान रखता है। हमेशा ध्यान रखता है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो वो उसमें वेरिएशन हो और सिंपल हो, ठीक है। सो यहाँ आपका टॉपिक, यहाँ चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू।